शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वर
Quartermaster sir, all outdoor and indoor instructors, guests and my dear batchmates. I, SI Cadet Dev Kumar Tyagi and SI Cadet Shashwat Jaiswal welcome you all to this investiture ceremony of second and third batch SI Cadets of RPF ZPI Kharagpur. The great ball of ZPI Kharagpur unveils before us the gems that the institute has produced in past 9 months of training. It is a momentous occasion in the life of a cadet, the day he finally becomes an officer, the day he takes the oath of allegiance to the Constitution of India. सामने मत कर जब ग्रुप का खड़ा होगा तब मानना चलो खड़ा होगा ना ग्रुप खड़ा Honorable ADRM, Kharagpur, Shri V.K. Chaudhary sir, has arrived among us. Sir, entire ZTI Kharagpur welcomes you. The foundation of ZTI Kharagpur, where we have gathered today, was laid by the then Chief Security Officer, Southeastern Railway, late Shri D.G. Bhattacharya, on 7th March 1958. And the institution was inaugurated by late Shri Jagjeevan Ram, the then Minister of Railways, on 30th August 1959. This institute is stretching in an area of about 33 acres, is enriched with nature and its beauty. It has a number of trees bearing a variety of fruits and flowers and an exceptional diaspora, making it an eye-catcher in entire Kharagpur. Ever since the inception of ZTI Kharagpur, it has given training to thousands of trainees who, as officers and members of force, contributed to the best of their capabilities in providing protection and security to railway property and passengers, and have coordinated with other departments for effective and smooth functioning of railways. The entire ZTI is divided into two parts. The main campus, comprising of administrative block, a vast play cum parade ground, firing range, obstacles ground, computer lab, arms court, gym, library, mess, pond and temple. The other part has accommodation for the trainees. Its eco-oriented ambience is surreal.
Parade Commander SI Cadet Sushil Kumar taking the charge of the parade from second in command SI Cadet Suraj Meena. Honorable DSC Cum Principal, ZTI Kharagpur, Shri R.K. Sharma sir has arrived among us. The parade, under Parade Commander, paid respect salute to respected Principal sir. This second and third batch of 434 SI cadets is in itself very special. It is an amalgamation of cadets who came from all parts of the country, practicing different culture and religion, wearing different dress code, communicating in different languages, but today they all practice one culture and religion, which is altruism, wear one dress code, which is their uniform, understand and act on one command. आज क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान खड़गपुर में Honorable DRM Kharagpur, Shri Manoranjan Pradhan sir has arrived among us. Entire ZTI Kharagpur welcomes you, sir. नौ महीने के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत तैयार की गई एसआई कैडेट्स की टोलियां आज सज धज कर सेरेमनियल लिबास में पूर्णता सुसज्जित आप सभी के समक्ष खड़ी हैं। इन्हें एक भावी सफल लोक निरीक्षक के रूप में तैयार करने में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के अंतरंग व बहिरंग शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। ये कैडेट्स 9 महीने के कठिन तप व परिश्रम के बल पर शारीरिक और मानसिक रूप से सृजित किए गए हैं, जो भारतीय रेल के विभिन्न मंडलों में योगदान देने हेतु पूर्णतः तैयार हैं। समारोह की इस पावन बेला पर उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं आगंतुक अतिथिगण का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान पुनः हार्दिक स्वागत करता है। आज इस शुभ अवसर पर इस भव्य नजारे के अवलोकन उपरांत वीर रस से उत्प्रोत महान कवि श्री द्वारका प्रसाद द्वारा रचित कुछ पंक्तियां स्वतः स्मरण की लकीरों को स्पर्श कर रही हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों,
पुनः नया निर्माण करो। सुरक्षा बलों की वर्तमान तादाद 65,000 के लगभग है। रेलवे सुरक्षा बल के हेड डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। वर्तमान समय में 1985 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी श्री अरुण कुमार जी रेलवे सुरक्षा बल के DG पद का कार्यभार सौंपा गया है। रेलवे सुरक्षा बल रेल यात्रियों, रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ रेलवे क्षेत्र में अनाथ बच्चों को भी सहायता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे की क्षमता एवं छवि को बनाने के लिए भारतीय रेलवे के अन्य विभागों की भी We cordially welcome you. बिगुलर द्वारा गूंजते संकेतों से इंगित होता है कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान खड़गपुर के प्रांगण में आज के हमारे श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता है। Now parade commander marching towards the saluting days to report to esteemed DG sir. परेड कमांडर माननीय महानिरीक्षक महोदय जी से परेड के निरीक्षण की कार्रवाई का आदेश प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर होते हुए Honorable IG Cum PCSC, Southeastern Railway, Shri Devendra Nath B. Kasar sir, was born on 14th April 1968 and he did his BE Civil in College of Engineering Pune, Maharashtra. Sir, you joined the Railway Protection Force in Group A services through Indian Civil Services 1990 examination. From the first inception as ASC Patna to the present posting of Principal Chief Security Commissioner, Southeastern Railway, you are known for envisioning and implementing sustainable system improved to control crime, strategic planning, innovation in railway security and passenger safety. Sir, you have specialized in preventing, policing and formulating strategic operations over a period of time to deal with different security threats ranging from terrorist attacks, Naxal activities to trafficking of women and children over Indian Railways. Sir, so far you have launched well-planned operations with innovative strategies, namely Operation Eagle in 2008 over Western Railway, Operation Reverse Flow in 2013 over Southeastern Railway, Operation Nande Farishte in 2018-19 over Southwestern Railway. Your distinct career is highly appreciated all over Indian Railways, and for honesty and dedication you have received GM Award in 1998, DG Insignia in 2001, Indian Police Medal in 2013, DG Insignia in 2017, DG Commendation in 2019, and Sport Policing Award of Vicky in 2019. The inspection car has arrived on the assembly line for the inspection of the parade by Honorable Chief Guest. Starting from the platoon number 1,
which is being commanded by Platoon Commander SI Cadet Deepak Singh Kashyap. Platoon number 2 under the command of Platoon Commander SI Cadet Avinash Yadav. Platoon number 3 under the command of Platoon Commander SI Cadet Om Prakash Gurjar. Platoon number 4 under the command of Platoon Commander SI Cadet Anil Chaudhary. Platoon number 5 under the command of Platoon Commander SI Cadet Yogendra Singh Avana. Platoon number 6 under the command of Platoon Commander SI Cadet Bhashavani Ravi Teja Yadav. Platoon number 7 under the command of Platoon Commander SI Cadet Surya Kumar. Platoon number 7 under the command of Platoon Commander SI Cadet Rahul Kumar. Passing by center of assembly line, we have second in command SI Cadet Suraj Meena and band under command of band commander Head Constable Durga Tamang. Platoon number 9 under command of Platoon Commander SI Cadet Magat Lal Nayak. Platoon number 10 under command of Platoon Commander SI Cadet Nagendra Bale. Platoon number 11 under command of Platoon Commander SI Cadet Hansraj Badhala. Platoon number 12 under command of Platoon Commander SI Cadet Rahul Duhan. Platoon number 13 under command of Platoon Commander SI Cadet Shubham Kumar. Platoon number 14 under command of Platoon Commander SI Cadet Manoj Daigude. SI कैडेट्स के प्रशिक्षण से पूर्व क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान खड़गपुर का निरीक्षण माननीय महानिदेशक द्वारा किया। मान के मार्गदर्शन के आलोक में SI कैडेट्स का प्रशिक्षण कार्य संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के मध्य चरण से ही कोरोना महामारी का दौर आरंभ हुआ। फिर भी समय समय पर श्रीमान द्वारा निर्गत आदेश व दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न किया गया। यह श्रीमान के मार्गदर्शन व प्रेरणा के बिना संभव नहीं था। कैडेट्स को विभिन्न विधाओं में जैसे वाहन चालन, तैराकी, यूएसी, योग, घोड़ा जंप व अन्य डिफेंस कलाबाजियों में प्रशिक्षण कार्य दिया गया। अंतरंग विषयों में ज्ञानवर्धन हेतु विषय विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान व सेमिनार का आयोजन किया गया। इस प्रकार प्रशिक्षण का यह महान कार्य महामारी की चुनौतियों के बावजूद भी पूर्णतः सफल तरीके से माननीय महानिदेशक महोदय द्वारा प्रेरणा व मार्गदर्शन से मूर्त रूप ले सका। इसके लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान माननीय महानिदेशक महोदय जी का सहृदय आभार ज्ञापित करता है। परेड निरीक्षण की कार्रवाई के उपरांत माननीय महानिरीक्षक महोदय पुनः स्वस्थान ग्रहण करते हुए Now the national flag and the unit flag will be brought by Nishan Toli under Nishan Officer ASI Santosh Kumar Pandey.
समारोह में उपस्थित अधिकारीगण व अतिथिगण से निवेदन है कि निशान टोली के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान के ध्वनि पर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं व वर्दी में उपस्थित गण सैल्यूट करें। The Nishan Toli comprises the Nishan officer and the Nishan Rakshak, resplendent in regalia, proudly bears the national flag and the unit flag, under which are the highest honor that an unit can aspire. Nishan Toli reminds the general public that honor and dignity are important themes, and to stand to attention when the Nishan Toli marches past.
मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान रहूंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का वफादारी, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। Parade Commander marching towards the saluting base to seek permission of Honorable IG Sir for further proceedings. मार्च पास्ट की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर महोदय से आदेश ग्रहण करने के उपरांत निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए की कॉलम में बारी बारी तेज चल से मन से गुजरेगी नंबर 1 प्लाटून आगे दीक्षांत 303 में
अगली कार्रवाई के क्रम में परेड कमांडर ने इस भव्य सुसज्जित कवायद टोली को बारी बारी सलामी मंच के समक्ष से गुजरने के कार्य हेतु आदेशित किया। Leads us to believe that the sound is not from the drum but the falling of steps of the cadets. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का यही उद्घोष है। तू परम पवन अनुकूल देख, तू देख भुजा का बल अथा, तू चले बेड़िया तोड़ने, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरनी पर दमित तेज, सागर पारे से उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। बैंड कमांडर हेड कांस्टेबल दुर्गा तमाम की अगुवाई में बैंड की धुन पर सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए यह वीर अदम्य साहस में जोश से भरे हुए सामने 100 गज बात सी निगाहें, बैंड के डंके पर चलते इनके कदम, शेर से उभरे हुए सीने। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई योद्धा रणभूमि में अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर विजय का संग्राम करने को व्याकुल हो। Parade under parade commander SI Cadet Sushil Kumar and second in command SI Cadet Suraj Meena marching towards the saluting base. With swift steps and confident posture, we have Platoon number 1 under command of Platoon Commander SI Cadet Deepak Singh Kashyap. Platoon number 2 under command of Platoon Commander SI Cadet Avinash Yadav. Platoon number 3 under command of Platoon Commander SI Cadet Om Prakash Gurjar. Platoon number 4 under command of Platoon Commander SI Cadet Anil Chaudhary. Platoon number 5 under command of Platoon Commander SI Cadet Yogendra Singh Navana. Platoon number 6 under command of Platoon Commander SI Cadet Bhashavani Ravi Teja Yadav. Platoon number 7 under command of Platoon Commander SI Cadet Surya Kumar. Platoon number 8 under command of Platoon Commander SI Cadet Rahul Kumar. Platoon number 9 under command of Platoon Commander SI Cadet Magat Lal Nayak. Platoon number 10 under command of Platoon Commander SI Cadet Nagendra Balu. Platoon number 11 under command of Platoon Commander SI Cadet Hansraj Badhala. Platoon number 12 under command of Platoon Commander SI Cadet Rahul Duran. Platoon number 13 under command of Platoon Commander SI Cadet Shubham Kumar. Platoon number 14 under command of Platoon Commander SI Cadet Manoj Daigude.
band under the command of band commander Head Constable Durga Kamal playing the band tune of Jai Bharat. In all nations and at all times, martial music has accompanied beats of arms, serving the twofold purpose of inspiring the troops to fight and as a method of conveying orders. It was used लोगन उपरांत वीर रोसे ओतप्रोत महान कवि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित कुछ पंक्तियां स्वतः स्मरण की लकीरों को स्पर्श कर रही हैं। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। परेड के अगले क्रम में परेड कमांडर द्वारा आदेशित कैडेट्स समीक्षा क्रम की कार्रवाई में अग्रसर होते हुए Now we would request Principal cum Security Commissioner Shri R.K. Sharma sir to kindly welcome the Chief Guest sir and the invitees by a welcome speech. माननीय प्रधान मुख्य सुरक्षा महोदय, मंडल रेल प्रबंधक खड़गपुर महोदय, सीएमएम साहब, सीएससी सर और साउथ ईस्टर्न रेलवे से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी बल सदस्य एवं अधिकारी व अन्य मीडिया कर्मी, आज दीक्षांत परेड समारोह की इस पावन बेला पर जेटीआई खड़गपुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आप सभी को आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समय प्रदान करने के हेतु तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस पावन अवसर पर जेटीआई खड़गपुर आप सभी का स्वागत करता है।
इस अवसर पर मैं पास आउट होने वाले सभी उपनिरीक्षक ट्रेनीज के उनके भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। श्रीमान जेटीआई खड़गपुर में 442 कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिसमें से आज 434 कैडेट्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली और सभी के सभी पास आउट हुए। यह जेटीआई खड़गपुर के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। 434 कैडेट्स में बिट्स मेसरा व अन्य एनआईटी से बीटेक, 132 कैडेट जो है बीटेक और एमबीए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योग्यता भी है, कुछ कैडेट्स नेशनल खेले हुए भी है इसमें। श्रीमान ट्रेनिंग के दौरान कोविड जैसी महामारी का सामना करते हुए कैडेट्स ने सोशल डिस्टेंस बनाते हुए ट्रेनिंग ली। आपके मार्गदर्शन में समय समय पर जो निर्देश दिए गए उनकी पालना करते हुए आज ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। श्रीमान के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही हम इस ट्रेनिंग को सफल करने में कामयाब हुए हैं, जिसके लिए मैं आप श्रीमान का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। पुनः श्रीमान द्वारा अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं जेटीआई खड़गपुर की ओर से आप पीसीएससी सर, सीएससी सर, डीआरएम सर, सीएमएम सर व अन्य अधिकारियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। Thank you, sir. Now we would request Honorable IG cum PCSC, South Eastern Railway, Shri D.B. Kasar sir, to kindly address the cadets with your inspiring words and guide them for their bright future. उपस्थित डीआरएम खड़गपुर, श्री प्रधान, अन्य रेलवे के अधिकारी, मेरे कलीग डीआईजी संजय, प्रिंसिपल श्री शर्मा और आरपीएफ के सभी ऑफिसर्स, और साथ में आज जिनका पासिंग आउट है, जिसके लिए हम यहाँ एक हुए हैं, ऐसे दीज यंग सब इंस्पेक्टर्स। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डीजी साहब ने सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग तक जो पहल शुरू की, उसमें का नतीजा आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी आपके प्रिंसिपल साहब ने आपका हर एक का कहाँ का एजुकेशन हुआ है ये बताया। इसी से मालूम पड़ता है कि जो इनपुट हुआ है, जो एंट्री हुई है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग अंदर आए हैं। उसके बाद जिस तरह से आपका अभी परेड हुआ, आपके कमांडर जिस तरह से कमांड ले रहे थे, इवन हमने आपका फायरिंग का भी सब देखा है पूरे डिटेल में। बहुत ही सुंदर फायरिंग रहा आप लोगों का, तो हमें बहुत नाज है कि एक हिंदुस्तान का एक पैरामिलिट्री फोर्स आरपीएफ जाना जाता है, अपने अपने एक मायना रखता है, उसमें आप एंट्री कर रहे हैं और सक्सेसफुल होके अभी अपने अपने जोन में जाएंगे। और इस बैच की खासियत है कि इसमें लगभग 17 रेलों से कैडेट आए हुए हैं। और जैसे आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि कोविड का चैलेंज पूरे देश को, पूरे दुनिया को परेशान कर रहा है, उस दरमियान आप लोग लगभग यहाँ 3-4 महीने कम से कम कोविड के निकाले होंगे और आपने ड्यू प्रिकॉशन लिया कि जिसके चलते आप एफेक्ट नहीं हुए और आपका ट्रेनिंग भी हुआ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने रेलवे में लौट जाएं, तो यही प्रिकॉशन ले लें और अपनी ड्यूटियाँ निभाएं। आगे चल के आपने ड्यूरिंग आपके 9 मंथ देखा होगा कि आरपीएफ अभी पैसेंजर से बहुत जुड़ा हुआ है। और यही आप याद कीजिए कि 9 महीने पहले आप भी एक पैसेंजर थे, अभी आप फोर्स के सब इंस्पेक्टर बन गए। तो कम से कम मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब लौट के जाएंगे तो आप हमेशा ही अपनी विचार, अपनी भावना कायम रखेंगे
और उसी तरह से अपने फोर्स का नाम रोशन करने का कोशिश करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने जो शपथ ली आप ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे और इसी कदम पे एक साथ चलते आगे चलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। पुरस्कार विजेता लंगोर लायन। पुरस्कार विजेता मध्य से तेज। In this tenure of 9 months training, cadets who have performed exceptionally well and scored maximum marks in final examination will now be felicitated with awards by Honorable IG cum PCSC Southeastern Railway Shri Deepak Kasar sir. विजेता 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 Chess number 37, SI Cadet Pradeep Kareti for his excellent performance in final indoor examinations is awarded for indoor best. Chess number 37, SI Cadet Pradeep Kareti. Chess number 21, SI Cadet Sushil Kumar for his excellent performance in final outdoor examinations is awarded for outdoor best. Chess number 21, SI Cadet Sushil Kumar. Chess number 22, SI Cadet Suraj Meena for his excellent performance in final indoor and outdoor examinations is awarded for all-round best. Chess number 22, SI Cadet Suraj Meena.
पीछे पुरस्कार विजेता मध्य से तेज चल। These cadets are awarded for their hard work and dedication in these streams of excellence. This in turn motivates and encourages the cadets to perform their duty in railways with utmost honesty. पुरस्कार विजेता निकाल किच। पुरस्कार विजेता लाल तोड़। पुरस्कार ग्रहण करने के उपरांत पुरस्कार विजेता पुनः अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए। Now we request respected Vice Principal RPF ZTI KGP Shri PC Pusti sir प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय, मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय, मंडल रेल प्रबंधन खड़गपुर महोदय एवं अतिरिक्त रेल प्रबंधक खड़गपुर महोदय, मंडल सुरक्षा आयुक्त खड़गपुर आद्रा सीकेपी रांची, सुरक्षा आयुक्त सह प्राचार्य महोदय, अधिकारीगण, मीडिया कर्मी एवं आगतुक अतिथिगण, आज दीक्षांत समारोह पैरेड की इस पावन बेला में आप सभी का क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान खड़गपुर हार्दिक शुभकामना करता है। विशेष रूप से मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त साउथ ईस्टर्न रेलवे महोदय का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बेशकीमती समय से यह पल निकालकर पास आउट हो रहे उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं को आशीर्वाद प्रदान करते हेतु उपस्थित होने का कृपा किए। श्रीमान के मार्गदर्शन व प्रेरणा से ही आज हम लोग सफल तरीके से इस वैश्विक कोरोना महामारी के बावजूद भी चुनौती भरे इस प्रशिक्षण कार्य को साकार कर सके। इसके लिए हम सभी माननीय महोदय का सहृदय आभार ज्ञापित करते हैं। साथ ही मैं उन सभी अधिकारीगण व जवान को सहृदय बधाई देता हूं, जिनके कठिन मेहनत से यह भव्य आयोजन संभव हो सका। साथ ही मैं एसएनटी, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज दीक्षांत समारोह का कवरेज किया। अंत में पुनः एक बार आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त साउथ ईस्टर्न रेलवे महोदय का सहृदय आभार ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। परेड कमांडर माननीय महानिरीक्षक महोदय जी से परेड के अगले कार्रवाई का आदेश प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर होते हुए।
महोदय से आदेश ग्रहण करने के उपरांत परेड कमांडर निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए Vikrant Seth! Vagan Seth! Vikrant Seth! Deine Fleck bei! Euer Fleck deine! Deine bei! Deine bei kommt! Deine bei Seth! Dire Chant! अगली कार्रवाई के क्रम में परेड कमांडर द्वारा आदेशित कैडेट्स तीनों दिन के कॉलम में बारी बारी मंच के दाहिने एवं बाएं छोर से अग्रसर होते हुए आज के शुभ अवसर पर इस भव्य नजारे के अवलोकन उपरांत वीर रस से ओतप्रोत महान कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां स्वतः स्मरण की लकीरों को स्पर्श कर रही हैं, जो कुछ इस प्रकार है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। नौजवानों का यह जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते उनके कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि भारतीय रेल इन हाथों में सुरक्षित है। धीरे चाल में कैडेट्स के ये कदम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं कि यशोलवस्व का सिद्धांत सदा ऊंचा रहे। इनके कदमों की आवाज हमें बता रही है कि भारत माँ के यह वीर आखिरी गोली, आखिरी सांस तक रेलवे की सुरक्षा एवं हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहेंगे। नौ महीने के कठिन तप व परिश्रम के उपरांत क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के गर्भ से जन्म लेते हुए ये कैडेट्स भारतीय रेल के विभिन्न मंडलों में अपना योगदान देने हेतु पूर्णतः तैयार है।
क्लासमेट्स, आप सभी इस जानकारी से अवगत होंगे कि वाहन चालन के लिए उच्च दर्जे की एकाग्रता व संतुलन महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला कार्यक्रम इस बात को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करेगा। हाथों में स्वॉर्ड, चलते मोटरसाइकिल पर खड़े होकर अद्भुत एकाग्रता व संतुलन के साथ सेनेटरी मंच की ओर अग्रसर होते हुए हेड कांस्टेबल दीपक घोष स्वॉर्ड सलामी से महोदय महानिरीक्षक को सम्मानित करने के उपरांत मंच के समझ से गुजरते हुए हेड कांस्टेबल दीपक घोष। सैल्यूटिंग बेस के समक्ष से गुजरते हुए हेड कांस्टेबल दीपक घोष द्वारा अद्भुत अद्वितीय दृश्य की प्रस्तुति हाथों में राष्ट्रध्वज लिए माननीय महानिदेशक महोदय को सलामी देते हुए। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज बन के मैं खिल। अगली प्रस्तुति में चलते बाइक पर संतुलन बनाते हुए व अखबार का लुत्फ उठाते हुए हेड कांस्टेबल दीपक घोष आग से जलते रॉड के नीचे से गुजरते हुए। यकीन मानिए यह नजारा जितना रोमांचक दिखता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस अभिनय में एकाग्रता व साहस की पराकाष्ठा अनिवार्य है। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे। अगले क्रम में अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार हेड कांस्टेबल दीपक घोष शयन मुद्रा में अद्भुत एकाग्रता व वर्षों के अभ्यास उपरांत इस हैरत अंगेज कारनामे कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे एक बार फिर से चलते बाइक पर संतुलन बनाते हुए हेड कांस्टेबल दीपक घोष हाथों में हथियार और निगाहें सामने गुब्बारे पर टिकी हुई और ये अचूक निशाने से गुब्बारे को ध्वस्त कर सटीक निशानेबाजी का परिचय देते हुए। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। किसी भी सशस्त्र बल व पुलिस बल के लिए सुदृढ़ शरीर, तेज दिमाग व ओज का विकास महत्वपूर्ण होता है। मार्शल आर्ट, योगा, यूएसी और पीटी का प्रशिक्षण व निरंतर अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि बल के सदस्यों को शारीरिक व मानसिक रूप से हर क्षेत्र में सशक्त होना अति आवश्यक है। जाना, ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बहिरंग के निर्धारित पाठ्यक्रम से अतिरिक्त कैडेट्स को यूएससी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं एएसआई विश्वेश्वर राय व उनकी टीम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एएसआई विश्वेश्वर राय व उनकी टीम का। से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा बन के कलम जब तुरया तन के मौत नू वाचा मारे घर घर कपड़े सारे कैडेट्स जोश बनाए रखें, जोश कम नहीं होना चाहिए। पहले क्रम में प्रज्वलित वलय से गुजरते हुए कैडेट्स आप सभी के समक्ष अद्भुत साहस है फिर रोमांचक दृश्य की प्रस्तुति देते हुए तो मॉल में अखरोट का बिजनेस करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से इनका मनोबल बनाए रखें। तक है जाना हर कतरा बोल रहा बन के कलम जब तुरया तन के मौत नू वाचा मारे घर घर कपड़े सारे ओ चला सीते बन के कलम जब तुरया तन के मौत नू वाचा मारे घर। अगले क्रम में प्रत्येक कैडेट क्रम अनुसार क्रॉस शॉट के मध्य से छलांग का एक अद्भुत वे आदित्य नजारा पेश करते हुए जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। कैडेट नरेंद्र द्वारा एक उत्कृष्ट छलांग का नमूना। कैडेट्स जोश बनाए रखें। इस प्रकार अगले क्रम में उत्कृष्ट छलांग का नमूना पेश करते हुए कैडेट्स क्रॉस या आर्म राइफल्स की धारदार संगीनों के मध्य से छलांग लगाने को तैयार। बहुत खूब। तालियों की गड़गड़ाहट से जेटीआई का प्रांगण गूंज जाना चाहिए। कैडेट्स आप सभी से अनुरोध है कि इन कैडेट्स का जोश बनाए रखें। तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन-कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशालें
से जुनून तक है जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। छल्ला फिरते बन के कसम जब तुड़िया, तन के मौत में बच्चा मारे में थम थम थमते सारे। छल्ला फिरते बन के कसम जब तुड़िया, तन के मौत में बच्चा। अगले क्रम में अदम्य साहस, एकाग्रता, स्फूर्ति व निडरता का एक प्रत्यक्ष नमूना पेश करने आ रहे हैं एएसआई विश्वेश्वर राय वे उनकी टीम के कमांडोज। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा है। जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। पहले क्रम में एएसआई विश्वेश्वर राय तैयार। ये कैडेट्स अपने सिर से सामने रखी हुई है टाइल्स तोड़ते हुए। ये कैडेट्स वर्षों की मेहनत व कठिन तप के उपरांत इस कला में निपुण हुए हैं।
अगले क्रम में ये कमांडोज अपने हाथों से सामने रखी हुई जलती हुई टाइल्स को तोड़ते हुए, जो दर्शाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ ये कैडेट्स शारीरिक रूप से भी उतने ही सशक्त एवं कठोर हैं। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए इनके साहस व एकाग्रता के नमूने का। एकदम पीछे चल, एकदम पीछे चल, एकदम पीछे चल। लेकिन बड़ी सलाट, पहचान। अगले क्रम में एएसआई विश्वेश्वर राय आप सभी के सामने ला रहे हैं बेहद खतरनाक, आश्चर्यजनक व अद्भुत नजारा। कृपया जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। इस क्रम में एएसआई विश्वेश्वर राय अपने पेट पर रखिए भारी भरकम 10-10 किलो के 2 पत्थर एक साथ हथौड़ी से तोड़वाते हुए एएसआई विश्वेश्वर राय 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। नंबर मुझे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चेस नंबर 30 द्वारा भारत माता की जय के पीयूष चौधरी भारत मां की जयकारे से गूंजता हुआ ZTI का प्रांगण। Now we would request respected DIG comes CSC South Eastern Railway Shri Sanjay Kumar Mishra sir to kindly present memento to Honorable DRM Kharagpur Shri Manoranjan Pradhan sir. We would request respected Security Commissioner cum Principal Shri R.K. Sharma sir to kindly present memento to Chief Guest of the Day Honorable PCSC cum IG SER Shri D.B. Kasar sir. भारत माता की ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे भारतवर्ष से लगभग 17 रेलवे वहाँ से सब कैंडिडेट चुने गए थे। लगभग 434 ये सब बच्चे थे और आपने देखा होगा कि दरमियान कोविड आ गया तो उस समय भी इनका ट्रेनिंग ब्रेकअप नहीं हुआ। ड्यू प्रिकॉशन लेके ये सब ट्रेनिंग करते रहे। इनको आउटडोर इंडोर का ट्रेनिंग करा दिया गया। आर्म्स असला की सिखलाई, इन्फेंट्री का ट्रेनिंग एवं लॉ का नॉलेज, ये सब चीज़ें इनको दी गई। ऐसा कि जब से कोविड हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, आपने देखा होगा कि रेल का
का यात्री परिचालन बंद है, लेकिन खास करके साउथ ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ गुड्स ट्रेन कंटिन्यूस मूवमेंट है, जो अपने देश के लिए खाद्य सामग्री जानी चाहिए हर जगह, या बाकी भी कई नहायत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जगह जगह ये ट्रेन सब सुरक्षित पास हो, इसलिए हमारे जितने बेसिक स्टेशन हैं और मतलब इम्पोर्टेंट जंक्शन सभी जगह RPF स्टाफ पेट्रोलिंग भी है और मौजूद भी है, और अपना ड्यू प्रिकॉशन लेके हमारा डिप्लॉयमेंट रात दिन कंटिन्यूस चल ही रहा है। कोविड सिचुएशन में से ट्रेनिंग है, ये कोविड सिचुएशन में जो सिचुएशन ट्रेनिंग दिया है अभी तो किस तरह से तैयार है? तो आपने देखा होगा कि कोविड एक बहुत ही बड़ी महामारी, फिर भी हमारी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू हुआ। 5 महीने हमने 4 महीने के लिए बराबर 434 मिनट किया। तो कोई भी आपत्ति आए, आखिर फोर्सेस का काम ही है कि देश के लिए आपत्ति में आगे चलते रहें। कुछ ही दिनों में RPF में काफ़ी सारे कोविड अस्पताल थे, तो ये प्रोफेशनल हैजार्ड से RPF स्टाफ आपको रेलवे स्टेशन हो, श्रमिक एक्सप्रेस हो, या जो स्पेशल ट्रेन चलेगी, हर जगह आपको RPF स्टाफ स्टेशन पे मिलेगा, ट्रेन में एस्कॉर्ट में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब फ्रंट में है तो होना एक प्रोफेशनल हैजार्ड है, तो उसको भी हमारे लोग कायदे से उससे बाहर भी पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो इसके नतीजे से आज जो आप लोग कार्यक्रम की हाँ बिल्कुल, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखते हुए आपने देखा होगा हमने कि अभी तक ये पिछले जाते बच्चों का सवाल है और प्रोग्राम का सवाल है, पिछले 4 महीने से कंटिन्यू इनका डेली का शेड्यूल चल रहा है, जैसे परेड है या आउटडोर है, फायरिंग है, सब चलती रहे। तो हमारे कहना है कि आखिर ड्यू प्रिकॉशन लेके कार्यक्रम पार करना चाहिए। आने वाले दिन में ट्रेन तो चलने वाले हैं जी, तो इसको लेकर आपका तरफ से क्या प्रिपरेशन किया गया? जैसे आपने देखा होगा हमारे GM साहब ने भी आदेश दिए थे, DG साहब ने आदेश दिए थे, साहब मीडिया से भी हमारे साथ थे। जितनी श्रमिक ट्रेनें अभी तक गुजरी, स्पेशल ट्रेन गुजरी, उसी तरह से अभी जितनी भी ट्रेनें पास होंगी उसको सेफली पास किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेशनों पे मतलब मैं गुजारिश करूँगा कि अपने पैसेंजर कोऑपरेट करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग रख के सुरक्षित यातायात जरूर की जा सकती है। उसमें पैसेंजर से लेकिन कोऑपरेशन बहुत लगेगा, जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइज करके आना, और हमारा फ़र्ज़ है कि स्टेशन पे आने पर भीड़ भाड़ ना हो, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कतार लगाएं,